Look at the artists, they just made it in few hours. Huh? Give a big hand to the artist. Kahan ho bhai? Stand up. Where are they? Where are the artists? Stand up. Where are you? Where are you? There. These 5, they just painted all this so beautifully. बैठ जाओ, बैठ जाओ. Yesterday our cameraman was complaining, not complaining, he was remarking, it's all very white background, it's not coming properly, we are not able to, something light for the light, they said, and they just painted it. Very good, in short time. Very good. ये पूरा जितना पेंटिंग हुआ ना यहाँ, ये सब गोबर से हुआ. दिस इज मोस्ट नॉन टॉक्सिक पेंट मेड हियर ओनली. There's no chemical in it, it's no toxicity. From cow dung they make the paint. All this white, every paint, you will not get any smell in this, No toxicity. That's very good. Go ahead, you have some questions? Gurudev, if the self is whole, radiant and ever present, why does this ache of longing still arise in the heart as though something is missing? Yes. It's like this. Though air is everywhere, when you sit near the fan, you can feel it. Correct? Air is everywhere. You can't even say there is no air, because the person who is saying no air is in air only. Is breathing air. So, like that, the self is everywhere, but to experience it, you have to increase your energy level, uplift the consciousness. And that's what happens when you go deep in meditation. The love and longing are two sides of the same coin. So it will be that way. That's exactly what Radhe Shyam means. Shyam is infinity, love. Radhe is longing. Radhe Govind is longing for the wisdom, longing for knowledge. Yeah. Gurudev, what is the deeper significance of having multiple Navratris throughout the year? Wouldn't one Navratri be enough to connect with the divine? Yeah. Celebrations are always nice to have for 4 seasons. In all 4 seasons, you celebrate. It's not just one day you make a celebration, rest of the day you don't. Divinity is all pervasive, all time. So every day you must feel that. Your upliftment of consciousness is not enough for 1 day, 2 days, 10 days in a year. Till it becomes a regular, permanent feature in you have to practice. Yeah? Okay, let's do some meditation. What do you say? Hindi mein hai kya? 2 questions in Hindi, then we'll do meditation. गुरुदेव, देवी काली के वाहन के रूप में गधे को दिखाया गया है. इसके पीछे का रहस्य क्या है? अरे एक नहीं है, देवी ने सभी में वाहन के रूप में लिए हैं. तो सिर्फ गधे को ही क्यों देख रहे तू? देवी बैल पर भी चढ़े, वृषभ वाहिनी,
बैल पर ही चढ़ी है और मोर पर भी है, शेरों वाली है, शेर पर भी चढ़ी है, और गधे को क्यों दुखी कराएंगे? शीतला माता का वाहन गधा है। यानी प्रकृति की कोई भी प्राणी दैवत्व से दूर नहीं है, डिविनिटी सब में है। मकरवाहिनी बोलते, मगरमच्छी पर खड़ी है माता, है ना, गंगा माता का वाहन का है मगरमच्छी। इसका मतलब सभी जीव जंतु को सम्मान करो। कौवे का भी ऐसा ही है। काली का वाहन, काली तो वैसे खड़ी है शिव के ऊपर, शव के ऊपर। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, कथाएं हैं जिसमें अलग अलग प्राणी को भी आत्मसात किया है। गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि अगर माला जप छिपा कर नहीं किया तो उसका फल इंद्रदेव ले जाते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, माला दिखा के करोगे तो वो आंखें उस माला पर रहेगा। अरे कब ये खत्म होने वाला है। इसी कारण से माइंड साइकोलॉजी अच्छे से जानते थे पुरातन लोग। पुराने लोग कहते तेरे हमारा मन जो है ना कहीं वो करता रहता, इसलिए जाप को अंदर ही अंदर करो। पहले तो माला छिपा के करते, फिर कर का मन का छोड़ के मन का फेर, कबीरदास का है ना वो, तो मन ही मन करो, मन ही मन करो। फिर वो भी छोड़ दें, उसको अजपा जप बोलते, जप ही नहीं, जप भी लीन हो गया, वही ध्यान होता। तो ये सब तरीका है। पहले जोर से बोलो, फिर फूलों को चढ़ाते हुए अर्चना करो, फिर चुपचाप जाप करो, फिर जाप से भी आगे बढ़ो, ध्यान करो। ये सब स्थूल से सूक्ष्म के ओर चलने का, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं ना, बड़े बड़े मूर्ति रख के पूजा नहीं करते हैं। ये तो अपना बन गया कि बड़ा मूर्ति इसलिए रखते हैं, भीड़ में दिखता नहीं, दूर से लोगों को दिखे, इसलिए भी रखते हैं बड़े मूर्ति। उस लिहाज से ठीक है। जो साधना के पथ में नहीं है, आम आदमी के लिए ठीक है भाई। एक ज्ञानी, एक साधक, एक संत हमेशा स्थूल से व्यक्ति को सूक्ष्म के ओर ले गए। हाँ, महाराजा बड़े बड़े मूर्ति बनाते थे, वो ठीक है उनके लिए, मगर संत कोई बड़े बड़े मूर्ति नहीं बनाए। ज्ञानी एनलाइटन लोग को भी बड़े बड़े मूर्ति नहीं बनाए। उन्होंने कहा बड़े से छोटे को छोटे 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 आए। पहले मूर्ति बोले, फिर सिर्फ चरण सेवा करो, चरण को ही देख के अर्चना पूजा करो। आप देखोगे अंबाजी में जाओ या वहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ, पुरी में जाओ, क्या करते हैं? पादुका रखते हैं, पादुका को ही पूजा करते हैं, सब वही करते हैं ना। मूर्ति के सिर पर तो माला फूल नहीं चढ़ाते हैं, चरणों में चढ़ाते हैं। तो चरण, फिर उससे भी सूक्ष्म शालिग्राम का ना नाक, ना आंख, ना नाक, ना कुछ नहीं, चेहरा नहीं होता। वो एक उनकी सानिध्य को अनुभव करने के लिए वो शालिग्राम रखते। और उससे सूक्ष्म है यंत्र, यंत्र में मंत्र, फिर मंत्र से भी सूक्ष्म है। मंत्र को सूक्ष्म करते 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 ध्यान में चले जाना, ये है प्रक्रिया, तो यही है। इसलिए यंत्र और मंत्र वगैरह रखते हैं और अंतर्मुखी होने के लिए एक वातावरण पैदा करने के लिए, ठीक है।